Good morning, students. This is Ram Prasad once again with you with the third chapter English Literature for Class 7. The name of the chapter is What is your water footprint? Okay, what is your water footprint? The chapter starts with the question What is your water footprint? Water footprint means how much water do you consume or use? Okay, so it means that how much water do you consume or use at your personal level and national level. It is basically an informative lesson that gives us idea about a careful use of water. Okay, now why do we need to know about the use of water at individual level and in national level? Because normal water is available in very limited amount. That's why it is important to save water. Okay, now it is our moral duty also that we should use it very carefully so that we can reduce water footprint by recycling it. And now here, water footprint, there are two types of water footprint. Okay, I told you water footprint means how much water do you consume, आप कितना पानी खर्च करते हैं, आप कितना पानी यूज करते हैं पर्सनल लेवल और इंटरनेट और नेशनल लेवल पे. So there are two types of water footprint. Now individual level water footprint. Individual level and national level. Okay. So what is individual level water footprint? The amount of water that you use in and around your home, school throughout the day. That is called your individual level water footprint. Okay. How much water do you consume throughout the day? That is called personal level water footprint. Now, national level water footprint. What is national level water footprint? The amount of water that you use personal level to industrial level throughout the day. That is called national level water footprint. पर्सनल से लेकर के इंडस्ट्रियल लेवल तक एक दिन में जितना वाटर का कंज्यूम होता है एक देश में उसको कहते हैं नेशनल लेवल वाटर फुटप्रिंट. ओके, नाउ so as you know, existence of life on the earth started from water. We cannot think about life without water. All the creatures on the earth, like man, animal, plants, depend on water. So, as you have seen previous years also, that how the people had to face many difficulty due to lack of water. So, we should very careful at the time of use of water. Now, let's start the chapter. How much water does it cost to make a product? Will calculating this cost or the corporate water footprint help make business more water sustainable? एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पानी खर्च होता है? विल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट, क्या एक कंपनी को बनाने में जो एक कंपनी को एक प्रोडक्ट को बनाने में जो पानी का खर्च होता है उसका कैलकुलेट करना एक बिजनेस को उसका कैलकुलेट करना एक बिजनेस को ये हेल्प करेगा?
वाटर क्या एक बिजनेस को ज़्यादा वाटर सस्टेनेबल में हेल्प करेगा? विल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट, क्या इस कंपनी के द्वारा एक प्रोडक्ट को बनाने में जो पानी खर्च होता है, जिसको हम कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट कहेंगे, इसका वाटर इस कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट को का कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या हमें बिजनेस को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करेगा? तो दैट इज वाटर सस्टेनेबल. What is water sustainable? Water sustainable means the proper the proper use of water so that we can save water for future. पानी का सही तरीके से इस तरीके से यूज करना ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ बचा भी रहे, ताकि हम फ्यूचर के लिए बचा सकें. Judicious use of these resources is imperative, but unless one knows how much water is being used, how can they take steps to limit their use? Judicious means here careful and sensible. The proper way use the use of proper way. इस रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना, यानी पानी को सही तरीके से यूज करना इज इम्पेरेटिव, इज इसेंशियल. इम्पेरेटिव मीन्स हेयर इसेंशियल एंड जुडिशियस मीन्स ऑफिशियल और कैपेबल और केयरफुल एंड सेंसिबल. सावधानी से यूज करना ये आवश्यक है. बट अनलेस, लेकिन जब तक किसी को ये पता नहीं कि कितना पानी यूज किया जा रहा है, तब तक वो कैसे स्टेप ले सकते हैं, किस तरह कैसे प्रयास कर सकते हैं कि पानी का यूज करना लिमिट करें, लिमिट करने का प्रयास कैसे करेंगे. नाउ द थर्ड, a water footprint helps one understand the amount of water being used at individual level all the way to a national level and in the numerous process involved in manufacturing and producing our goods and services. So here a water footprint ये भी समझने में मदद करता है कि एक इंडिविजुअल लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक जो प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपनी को जो खर्च होता है, ए वाटर फुटप्रिंट हेल्प वन अंडरस्टैंड ए वाटर फुटप्रिंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स वे से लेकर के इंडिविजुअल से लेकर के और नेशनल लेवल तक. ये वाटर फुटप्रिंट हमें वाटर फुटप्रिंट ये समझने में मदद करता है कि इंडिविजुअल लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक पानी का और फैक्ट्री को जो और मैन्युफैक्चरिंग here water footprint helps to understand how much water used at individual level to national level. वाटर फुटप्रिंट ये हमें समझने में मदद करता है कि इंडिविजुअल लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक कितना पानी का यूज हो रहा है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर यूज्ड इन न्यूमरस प्रोसेस टू प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय कंपनी. और ये भी मदद करता है कि जो फैक्ट्री के द्वारा, जो कंपनी के द्वारा जो सामान को तैयार करने की प्रोसेस में जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो गुड्स प्रोडक्ट
करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में जो पानी का खर्च होता है उसको भी हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ द थर्ड नेक्स्ट, an accurate water footprint also takes into account the amount of water contaminated during the manufacturing and production process. This tool gives a solid water accounting framework and aids us all in our efforts to be more efficient and conservative with our water use. An accurate, एक सही वाटर फुटप्रिंट का ये भी बताता है कि सामान को बनाने में के समय से उत्पादन तक कितना पानी का पॉल्यूटेड हो। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ये टूल बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा फ्रेमवर्क होता है और हमें हेल्प करता है अपने प्रयास में कि हम ज़्यादा दक्ष हो सके पानी को सेव करने में। ओके, और वाटर के यूज़ में बचत कर सकें। The water footprint of an individual is the amount of water he or she uses in and around his or her home, school, or office throughout the day. It includes the water used directly, like that from a tap, as well as the water used indirectly, like the water utilized to produce the food one eats, the product he or she buys, the energy he or she consumes, and even the water he or she saves by recycling. Okay, the water footprint, एक इंडिविजुअल लेवल पे वाटर फुटप्रिंट या तो मेल या फीमेल जो भी यूज़ करते हैं अपने घर में, स्कूल में या ऑफिस में, पूरे दिन में जो भी पानी का खर्च होता है, स्कूल, घर या ऑफिस, ये सभी को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स द वाटर यूज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यूज़, पानी का डायरेक्ट यूज़ भी इंक्लूड करता है, लाइक दैट फ्रॉम अ टैप एज वेल एज द वाटर यूज इनडायरेक्टली। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो पानी का खर्च होता है उस सभी को ये क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल, जो इंडिविजुअल वाटर फुटप्रिंट है उसमें किसी मेल या फीमेल के द्वारा जो पूरे दिन में जो पानी का खर्च होता है ऑफिस, घर या स्कूल में, पूरे दिन में जितना पानी का यूज होता है, इंडिविजुअल लेवल वाटर फुटप्रिंट में उस सभी पानी का काउंट करते हैं यूज, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे उस सभी पानी को काउंट करते हैं जो एक पर्सन के द्वारा पूरे दिन में अपने घर, स्कूल या ऑफिस में पूरे दिन में यूज होता है, या तो डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे। डायरेक्टली कैसे यूज होता है, जैसे हम टैप से डायरेक्ट वाटर का यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली हो गया या इनडायरेक्ट वे में। और इनडायरेक्टली जैसे फसल तैयार करने से लेकर के और उसका प्रोडक्शन करने तक जो भी पानी का यूज होता है वो हो गया इनडायरेक्ट वे। ओके, जैसे हम कोई भी चीज़ का सीड लगाते हैं, वो तैयार होता है और फिर उसको हम फूड फिर तैयार करते हैं, और उसका जो प्रोडक्शन करने तक जो पानी का यूज होता है वो सारा किस में आ जाएगा, इनडायरेक्टली में आ जाएगा। और द प्रोडक्ट ही और शी बाइज द एनर्जी, और एनर्जी कंज्यूम करने तक में जो
खर्च होता है, जो पानी का खर्च होता है, और एनर्जी कंज्यूम करने में जो पानी का खर्च होता है, यहाँ तक कि